Morning students. Up to now we have studied sequencing. Now the remaining part is the assignment problem. First don't see problem, just see only assignment. Now you are very used to with this word assignment. Daily you get assignments of some subjects, isn't it? Now assignment means the work which is allotted to you to do, isn't it? Now, regarding that is regarding the school academics, isn't it? Now, coming to the industrial topic, assignment problem is nothing but you have to assign the jobs to certain machines so that the profit will be maximum, the time required will be minimum, the cost will be minimum. Okay. Now, suppose there are 5 salesmen. Okay, and we have to allot 5 districts are there and we have to allot 1 district to each. Now हर एक जो सेल्समैन है उसकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है, isn't it? सपोज ए सेल्समैन है, वो ए और बी में उसकी कुछ खास पहचान नहीं है तो वो अपना बिजनेस बढ़ा नहीं सकता, बट सी में उसकी अच्छी खासी पहचान है. तो अगर मैं ए सेल्समैन को मैं ए 1 डिस्ट्रिक्ट दूंगी, डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 दूंगी या ए दूंगी, सो विल ही वर्क प्रॉपरली ओवर देयर? वर्क तो वो कर लेगा बट द आउटपुट विच इज रिक्वायर्ड विल बी लेस. सो आई विल असाइन that district to the particular salesman who is good in that, whose business is good in that. This is called as assignment. Means you have to assign the jobs, assign the work. Programmers, suppose there are 4 programs, there are 4 programmers. A, B, C, D are the programmers and 1, 2, 3 are the 1, 2, 3, 4 are the programs. Now suppose programmer A है, वो फर्स्ट प्रोग्राम में इतना माहिर नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, लेकिन वो थर्ड में माहिर है, वो 2 घंटे में ही वो प्रोग्राम कर लेता है. तो और सेकंड जो है वो 4th प्रोग्राम जल्दी कर लेता है. सो आई हैव टू सी द होल इज डाटा ऑफ ऑल द 4 प्रोग्रामर्स कि कौन कौन से प्रोग्राम में अच्छे हैं. I have to sort them out and then I have to assign each, and that assignment is called as assignment problem. Okay, there are 2 cases over here. Basically there are 3 cases. First is maximization case, second is minimization case and third is unbalanced assignment problem. अब maximization में क्या क्या है? आपको मैक्सिमाइज क्या क्या करना पड़ रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, आउटपुट मैक्सिमाइज करना है, isn't it? एंड कम क्या करना है, मिनिमाइज क्या करना है, कॉस्ट मिनिमाइज, टाइम मिनिमाइज. ओके, सो वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स डायरेक्टली. ओके, पहले हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम्स कर लेंगे एंड देन वी विल डू द मैक्सिमाइजेशन. ओके, आई विल जस्ट रीड द क्वेश्चन. I hope it will be better if you write down the questions. A job production unit has 4 jobs, A, B, C, D. 4 jobs which can be manufactured on each of the 4 machines P, Q, R and S. The processing cost of each job for each machine is given below. Okay, now I will give the processing jobs in this column. You just copy down this table. This is the cost required.
Okay, this is the chart given. Now what is the main problem? That is, how should the jobs be assigned to machines so that the total production cost is minimum. अब minimum है तो remember it is a minimization case. Okay, so see the steps for minimization. You know that this is a row. There are 4 rows, 4 columns. Okay, now see here. आपका first step होता है, you have to select the least element from each row and subtract it from that particular row elements. Now see, A, B, C, P, Q, R and S. First row, which is the smallest element, you see here 25. अब बाकी सारे एलिमेंट्स में से आप यानी वो खुद से तो माइनस करना ही है. 31 minus 25 6, 25 minus 25 0, 33 minus 25 8, 29 minus 25 4. Now see the second one, which is the least element over here 21. Now this is 4 3 2 0. Now third row, which is the least over here, it is 19. 19 minus 19 0, 21 minus 19 2, 23 minus 19 4, this is 5. Now see the last row, which is the smallest here 34. 38 minus 34 4, 2 0 6. Got? So the first step was, you have to subtract the least element from each element of that row. Got it? Now second step है आपकी, हर एक कॉलम देखना है. अब हर एक कॉलम में से आप लीस्ट एलिमेंट ढूंढोगे और वही सेम प्रोसेस करोगे. नाउ सी, हर एक कॉलम में आपको भले ही 0 दिख रहा है, मीन्स आप 0 में से सारे जीरोज को सबट्रैक्ट करोगे तो वही रहेगा मैट्रिक्स. लेकिन आपको ये स्टेप स्किप नहीं करनी है, आपको फिर से यही सब लिखना है ताकि उनको दिखाना है कि हमने ये स्टेप भी की है. ओके, सी A, B, P, Q, R, S. लुक द फर्स्ट कॉलम 0 लीस्ट है तो आप 0 सबसे माइनस करोगे तो वही नंबर्स रहेंगे. 6 4 4. सारे मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होगा. हियर 0 3 2 2. इवन इन थर्ड कॉलम ऑल्सो 8 2 4 0 4 0 5 6. Got it? Now the main step is, आपको जितने भी जीरोज हैं उन सबको कवर करना है. और कवर भी कैसे करना है कि अगर एक लाइन में आपके 2 जीरोज कवर होते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड. यानी हर एक, अब देखो सपोज यहाँ और 2 जीरोज होती है या 1 जीरो होता तो मैं सेपरेट लाइन ना यूज करते हुए एक ही लाइन, यानी मैं मिनिमम लाइंस यूज करूंगी और मैक्सिमम जीरोज कवर करूंगी. लेकिन यहाँ ऐसा कोई दिख नहीं रहा है कि एक रो में या एक कॉलम में 2-3 जीरोज है तो मैं कैसे भी इसको कवर, ये देखो ऐसे भी किए तो भी चलेगा, ऐसे किए तो भी. गॉट इट? आई हैव कवर्ड ऑल द जीरोज. नाउ हाउ मेनी टोटल रोज आर देयर एंड कॉलम्स आर देयर? 4. और हमें ये जीरोज कवर करने के लिए भी कितने लाइंस लगे? 4. मीन्स आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड. सिंस number of rows or columns is equal to number of lines, our optimal means what is the required solution? Optimal solution is reached. Got it? अब वो solution क्या होगा? देखो ये जीरो zero. Again I will write matrix but now without the lines. A, B, C, D. P, Q, R, S.
भले ही ये लेंथी लगे लेकिन आपको लिखना है। 4 0 5 6। अब मैं जीरोस को ब्लॉक करती हूँ, हर एक रो या हर एक कॉलम में मुझे एक ही जीरो चाहिए। अब देखो रो वाइज रो या कॉलम वाइज रो, इट इज अप टू यू। मैं रो वाइज लिखती हूँ। देखो फर्स्ट रो में एक ही जीरो है तो मैं उसको अगर ब्लॉक करती हूँ, वही अगर मुझे यहाँ और कोई जीरो होता तो मैं वो नहीं ले सकती क्योंकि वो फिर कॉलम में मैंने दो ब्लॉक किए ऐसे होगा। ओके नाउ सी हियर गॉट इट। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, देखो these are the jobs and these are the machines and time required। I think time पूछा है ना, टाइम पूछा है कि कॉस्ट पूछा है तो हम टाइम के लिए कॉस्ट। ओके नाउ जॉब्स है आपके ए बी सी डी। अब जॉब ए के सामने कौन सी मशीन हमने ब्लॉक की है, क्यू। मीन्स ए जॉब को क्यू मशीन असाइन होगी, बी जॉब को एस मशीन, सी को पी और डी को आर। अब उसके सामने उसकी कॉस्ट लिखेंगे जो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में दिए हैं आपके क्वेश्चन में। देखो ए जॉब को क्यू मशीन पे 25 रुपीज लगते हैं, बी जॉब को एस मशीन पे लगते हैं 21, सी जॉब को लगते हैं 19 पी पे और डी को इस पे लगते हैं 34। सो आप टोटल कैलकुलेट करोगे, दिस इज द मैक्स मिनिमम कॉस्ट। ओके वन मोर सम वी विल टेक नाउ। See, I will just read the question. A computer center has 4 expert programmers. The center needs 4 application programs to be developed. यानी 4 programmers हैं और 4 programs हैं। The head of the computer center, after studying carefully the programs to be developed, estimates the computer time in minutes required by the respective experts to develop the application program। यानी कौन से प्रोग्राम को, कौन से प्रोग्रामर को कौन सा प्रोग्राम डेवलप के लिए हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। सी programmers time in minutes programs। Okay 2 3 4 and the programmers are A B C and D। Okay now the time required is 120 80 110 90 100 90 140 90। Okay next is AP, just write down along with me 110 120 80 90 70 100 90। Okay now our problem is how will the head of computer center assign the programs to the programmer so that the total time required is minimum। Again it is which type of problem, it is minimization case, so carry out with the same steps A B C D 1 2। नाउ पहली स्टेप क्या थी हमारी, हर एक रो में से लीस्ट एलिमेंट को चुनना है और माइनस करना है।
Now, which is the least element here? 80. अब 80 को सब में से माइनस करो. 120 minus 80, 40, 20, 0, 10. Okay. Second row में which is the smallest element? 7, 10, 20, 40, 0. Okay. अब third row में देखो 100 is the smallest element. 10, 40, 20, 0. And last row में देखो 80 is the least element. 10, 10, 0. Got it? अब नेक्स्ट स्टेप हो गया कि हर एक कॉलम में से आपको लीस्ट एलिमेंट चुनना है. फर्स्ट कॉलम में विच इज द लीस्ट एलिमेंट 10, तो हर एक एलिमेंट में से आप माइनस करोगे. 30, 0, 0, 0. नाउ सेकेंड कॉलम में 10, 10, 10, 30, 0. ओके. अब यहाँ तो 0 है, नो प्रॉब्लम, नो चेंज ओवर हियर. हियर ऑल्सो zeros are there. 10, 0, 0. अब आपके सामने है कि आपको जीरोस को ढकना है, लेकिन जीरोस को ढकते टाइम मुझे मिनिमम लाइंस का यूज करना है. मिनिमम लाइंस का देखो मतलब एक लाइन में मेरे 2-3 जीरोस ढकने चाहिए, क्योंकि 2-3 जीरोस के लिए मुझे अलग अलग लाइंस नहीं चाहिए. तो मैं पहले ढूंढूंगी ऐसा रो या ऐसा कॉलम जिसमें मैक्सिमम जीरोस हो ताकि वो एक लाइन से ढक जाए. ओके. नाउ सी, इससे मेरे 3-3 काम हो गए. अब सारे ढक गए हो गए. अब और मैं ढक गए सारे जीरोस में. मुझे कितने लाइंस लगे देखो. 1, 2, 3, 4. मीन्स सिंस नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लाइंस, our optimal solution is reached. अब देखो मैंने मैक्सिमम लाइंस ये एक करनी है, ये भी एक करनी है, ऐसा ना करते हुए मैंने मिनिमम लाइंस का यूज किया है. 30, 0, 0, 0, 10, 10, 30, 0, 0, 40, 20, 0, 10, 0, 0. ओके. अब मुझे ऐसे ब्लॉक भी करना है और कैंसिल भी करना है. ओके. ब्लॉक करना है नहीं उसको असाइन करना, और कैंसिल करना है नहीं छोड़ देना उसको. अब देखो ऐसा कौन सा रो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जीरो है, तो बट नेचुरली मुझे इसको तो ब्लॉक करना ही है, क्योंकि हर एक रो में मुझे एक ब्लॉक चाहिए और हर एक कॉलम में. अब देखो यहाँ आ गया, मतलब ये मैं नहीं ले सकती क्योंकि 2-2 ब्लॉक्स नहीं चाहिए मुझे, इसको कैंसिल कर देती हूँ. गॉट इट. अब सेकेंड रो में, सेकेंड रो में ये भी है, ओके. थर्ड रो में ये भी है, ये भी है. अब ये कॉलम देखो एक ही जीरो है उसमें, तो इसी को ब्लॉक करना पड़ेगा. लब इसका साथ वाला तो ये नहीं हो सकता, मतलब जी. अब मैं अगर इसको ब्लॉक करती हूँ तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इसको कैंसिल. गॉट इट. मीन्स और अगर ये है तो ये मुझे कैंसिल करना पड़ेगा. इन एनी ऑफ द केस व्हाट विल बी देयर, एक तो जीरो रहेगा, एक कैंसिल होगा. ओके. नाउ सी, एक ब्लॉक हो गया, यहाँ भी एक ब्लॉक हो गया, मतलब A B C D 1 2 3 C. A को कौन सा जॉब असाइन होगा? 3. B को 4th, C को 1 और D को 7. अब उसके रिस्पेक्टिव टाइम्स लिखोगे आप एंड विल गेट द आंसर. ओके. नाउ
नेक्स्ट I'll read the question first. Okay. Now, a workshop has 4 machines and 4 tasks. Each of the machines can perform each of the 4 tasks. Time taken is given. आपको minimize करना है उसको. I will do that. Tasks, processing time. In hours में दिए हैं अब tasks and machines. Okay. 1, 2, 3, 4. Machines हैं A, B, C and D. Time required is 51, 32, 37, 55, 82, 39, 49, 60. Next, 49, 59, 70, 50, 62, 75, 61, 60. Okay. Since it is a minimization case, all the steps will remain same. Now, first, what is the first step? हर एक रो में से आपको मिनिमम लीस्ट एलिमेंट ढूंढना है. 51, 0. 82 minus 51, I think it is 31. 59 minus 49 है यहाँ पर. 51 minus 49, 2. 82 minus 49, 7. That is 33. 49 minus 49 is 0. 62 minus 49 is 30. Okay. अब second row में which is the smallest element 34 तो minus करेंगे. 0, 7, 27, 40. Third row में again 37 is the smallest element. 0, 12, 33, 24. And last में 55. 0, 5, 3, 7. Got it? Now column wise देखेंगे. See. 1, 2, 3, 4. A. हर एक कॉलम में से लीस्ट एलिमेंट ढूंढेंगे. फर्स्ट कॉलम में 0 है एज इट इज. सेकेंड कॉलम में आपका लीस्ट एलिमेंट है 5. 22, 7, 0. थर्ड कॉलम में 0 ही है. लास्ट कॉलम में आपका है 7, 6, 36, 24 and 17, 0. Got it? Just check whether it is correct or wrong. It is 15. What is that? 17 ही है ना? 17. No. Got it? Now this was a 5. Now what is 0? अब कवर करेंगे zeros को. सबसे पहले मैं ऐसे रो या ऐसे कॉलम को ढूंढूंगी जिसमें मैक्सिमम 0 है. वो मुझे यहाँ दिख रहा है. एक 0 हो गया मेरा यहाँ. Got it? अब 1, 2, 3. How many lines we have got? 3 lines. But our number of rows and columns is 4. Means our optimal solution is not reached. अब जब ऐसे पॉइंट पे जहाँ आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन रीच नहीं होता, अब क्या करना है? अब जितनी भी अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, यानी उस पर कोई लाइन नहीं है, उसमें से आपको
एलिमेंट ढूंढना है और वो हर एक अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस करना है और जो एलिमेंट्स इंटरसेक्शन पे है उसमें ऐड करना है। गॉट इट? अब यहाँ जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उसमें से लीस्ट एलिमेंट कौन सा दिख रहा है आपको? ओके, सी। ए बी सी एंड जो कवर्ड वाले हैं उसमें उसको हाथ ही मत लगाना भी। ओके, सिर्फ इंटरसेक्शन पे क्या करना है? 28 माइनस 2 26, ये कवर्ड है, इसको हाथ नहीं लगाएंगे। 6 माइनस 2 4। अगेन ये भी कवर्ड है, इसको भी हाथ नहीं लगाएंगे। 2 माइनस 2 0, यहाँ भी हाथ नहीं लगेगा। 36 माइनस 2 34, ये भी कवर्ड है। 7 माइनस 2 5, कवर्ड, डोंट पिक। 17 minus 2 15. Got it? Now I have told that वो जो least number है you have to add to the point of intersection. अब ये intersection point पे है ना, दो lines का intersection, उसमें आपको 2 ऐड करना है। 0 will remain. Again ये intersection पे है, इसलिए भी आप ऐड करो। Got it? Now again the same procedure of covering the zeros. 1 2 3, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। Got it? Means 1 2 3 and 4 lines are there and 4 rows or columns are there. So see here, 1 2 3 4, A B C D. Now I will write everything without the lines. 0 0 27 34, 0 5 33 50, again 2 0 5 0. अब सबसे पहले मैं ऐसे रो या कॉलम को ढूंढूंगी जिसमें सिर्फ एक ही है। ब्लॉक कर दिया मैंने इसको, मीन्स ये तो लेना ही है। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब ये रो है जिसमें सिर्फ एक 0 है, तो मुझे दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसको ही लेना पड़ेगा। मतलब इसको नहीं ले सकती मैं। ओके, अब इसको लेती हूँ मैं, इसको नहीं ले सकती। दिस इज जस्ट द कॉमन सेंस यू कैन यूज, लॉजिक यूज करना है। अब 1 2 3 4, अब 1 को कौन सा होगा साइन? C, 2 को B, 3 को A, को D। उसके सामने उसके टाइमिंग्स लिखोगे एंड यू विल फाइंड द टोटल टाइम। गॉट इट? नाउ वन मोर सम वी विल डू। There are 3 cargo assignments. Directly I will write down the table. Aeroplanes, cargo consignments, C1, C2, C3. Aeroplanes are A1, A2, A3. Now profit. अब यहाँ maximization है. See here I will read the question. 3 different aeroplanes are to be assigned to handle 3 cargo assignments into a view to maximize profit. Means it is a maximization case. अब profit दिया हुआ है कि अगर ये एरोप्लेन को ये कंसाइनमेंट मिला तो कितना प्रॉफिट होगा in lakhs. This is 1 lakh, 2 lakhs, 3 lakhs. Okay. Now, maximization case है ये. So, write down. Since it is a maximization problem, since it is a maximization
problem, subtract each of the elements in the payoff matrix from the largest element. Okay, up. That will be your first case. C1, C2, C2. अब यहाँ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है आपको दिख रहा है 5. आप 5 में से सारे नंबर्स को आप सबट्रैक्ट करोगे. सो 4, 1, 0, 3, 2, 2, 2, 4. Got it? Now we will proceed our same step as in minimization case. Okay, now A1, A2, A3, C1, C2, C3. ओके, हर एक रो में से आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढना है. यहाँ 0 है, नो चेंज. यहाँ 2 है, 1, 0, 0. यहाँ भी 2 है, 0, 2, 1. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप हर एक कॉलम में से आपको ढूंढना है. A1, A2, A3, C1, C2, C3. C1 0 है. भले ही आपको दिख रहा है कि यहाँ चेंज नहीं है, बट स्टिल आपको एक स्टेप रिपीट करनी है. 1, 0, 2, 0, 0. अब या फिर ऐसे भी कर सकते हैं. 3 लाइन्स, 3 rows or columns. Now A1, A2, A3, C1, C2, C3. One, 0, 0, 0, 2, 1. ओके, अब ये है एक. अब यहाँ पे देखो, मैं ये तो नहीं ले सकती क्योंकि ऑलरेडी इस कॉलम में एक 0 है, तो मैं कौन सा लूँगी. नाउ कंसाइनमेंट्स A1, A2, A3. अब A1 एरोप्लेन को मैं कौन सा कंसाइनमेंट दूंगी, C3 का. A2 को दूंगी मैं C2 का. आप उसमें प्रॉफिट आप लिखोगे एंड फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट. गॉट इट? So this we have seen the minimization case and the maximization case. Okay. Now in the next lecture we will see the unbalanced assignment problem. Okay. Practice the sums. Thank you.